Hi guys. So welcome to our first interview with me, Mohini, your host from Mokwa. And today our first guest is you have to guess, okay? I'm giving you hints now. She's a sweetheart, she's a cutie, she's a golden teddy, and she's a confident bitch. Tell me, yes, you're right. It's Rohini Bhagat Gupta from Your Steady Next Door, and we welcome her. Hi Mohini, how are you? And Hi. wow, we are doing a great thing, I guess. So, how are you actually? I'm great. You tell me how are you doing? I'm also doing very great. You know, when you came with the concept of doing an interview, I was like so much excited, and maybe we are planning since 2 months, 2 to 3 months, right? For this. कि ये Yeah. कब होगा, and at last we are here. Thank you so much for having me on this. Seriously. My pleasure, dear. My pleasure. And I'm glad in these 2 months you've also got your YouTube Shorts का logo. So congratulations उसके ऊपर. कैसी Thank you. फीलिंग है हवा में उड़ रही हो अभी? हाँ, हवा में उड़ता जाए. I'm seriously very excited, you know. YouTube has given me an image, like a different image. Okay. पहले it was Okay. in a मजाक kind of कि teddy, but now I am your steady next door. So it's a brand, I guess. So let's start from the beginning. So ये Your Steady Next Door कैसे आया दिमाग में? कैसे रख दिया? You know, it's very unique. टेडी जैसी तो तुम हो ही हक करो तो बट ये नाम एग्जैक्टली रख लेना ओन करना हाउ डिड यू कम अप विद दैट कॉन्सेप्ट Right, so it's an interesting story actually. Your steady next door, actually, you know, I'm healthy, I'm chubby. तो बहुत सारे लोग मुझे कभी कभी मजाक में या कभी कभी ताने में या you're a teddy bear. तो पहले से ही your steady था. But then once in on that 15th of August, I was giving roses to all the police people, and me and my friend Sadia, we were like talking that the policeman is just next door. So उस हिसाब से I faced कि oh my god, yes, ये मेरा नाम हो सकता है. I am your steady next door now. कि आपकी Wow. योर स्टेडी बस आपके अगले द्वार तक. जब भी आप कॉल करो, जब भी मैसेज करो, आई एम ऑन देयर. सो नॉट एन इशू. इसलिए योर स्टेडी नेक्स्ट डोर केम अप टू माई माइंड एक्चुअली. You are an inspiration and you bring this a smile to I think most of our viewers है जिन्होंने भी आपके वीडियोस देखे हैं वो आई थिंक स्माइल करके चलते हैं एक वीडियो देख के चलते हैं आई Yeah. थिंक या उठते हैं दे वांट टू स्टार्ट देयर डे दैट वे तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है कब मतलब कैसे आता है क्या इसके बिहाइंड क्या मोटिव क्या है So क्या इंस्पायर करता है the inspiration which I get from is my mom. She has inspired. She's not in this world, but after like her expiry also, she inspires me. She, you know, keep me telling that just go, keep on going, don't look back, just go. And तू मेरी बेटी है, मैं अगर डांसर हूँ तो बेटी तू भी डांसर है. So you just go, आगे बढ़ते रहो. So she is my most, you know, the main support system. Either like physically she is not in this world, but mentally and like supportively she's always there. So my inspiration is my mom, definitely. I'm so sorry to hear that, but as you mentioned that you know she inspires you, and parents में एक होता है जो inspire करता है हमेशा, that is your mother. But we have never heard you like viewers ने भी शायद कभी आपको अपने father के बारे में बात करते हुए नहीं सुना. So why is that? ऐसा क्यों है? Oh, it's a very difficult question you have asked. I'm sorry. I'm sorry I had to. So, yeah, actually, as you got this question in your mind, so do my fans. You know, there are many messages and like कि आप आपके पापा के बारे में कुछ बताइए. I have nothing to tell about him because he was nowhere
in my whole childhood to my younghood. He was nowhere, and that's a sad thing that he got married to another lady. He has a kid. He doesn't miss me and my brother. So what's the use of taking his name जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे लिए या हमारे लाइफ में. Not even a single contribute, not financially but even not supportively. So that's why I don't talk about him. नाम ही गिनती है. That's good actually. I'm sorry for that, but since we're talking about men in our life और कन्या की लाइफ में ऐसा हो जाता है, so I'm very sorry for that. But there are some people who support us also, and I think with that I want to introduce Mr. Pawan Gupta, who is your support and My Teddy का backbone. प्यार, My backbone. your backbone. So let's welcome Mr. Pawan Gupta first. So hi पवन जी, Hi. आपके लिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों कैसे मिले. ऐसे मिले? आप दोनों आंसर कर सकते हो, मतलब नहीं, दोनों नहीं मैं कर सकते हो. पूना गया था, यहाँ पे वो टकरा गई पूना में. Okay. ये So- ऑडिशन देने गई थी, पूना में हम फर्स्ट टाइम मिले थे. So we were like मैं एक ऑडिशन देने गई थी and those people were not so genuine, and that time पवन जी was sitting in the जज जूरी, ये जज जो भी होता है उस एरिया में बैठे हुए थे. सो उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइक दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर यू, यू आर अ गुड एक्ट्रेस एंड समथिंग लाइक एक्टिंग का बहुत क्रेज़ था उस टाइम पर. तो दैट टाइम फिर पवन जी से हमारी बातचीत चालू हुई एंड वी वर लाइक फ्रेंड्स फॉर 1 year. He had feelings for me, but I was like, he is my genuinely my guardian angel, my friend, Fantastic. best friend. So उसके बाद then on 7th after 1 year, this day we met, कितना 7th of November 2013, and उसके एक साल बाद correct 7th November 2014 I proposed him. मैंने नहीं किया प्रपोज, इन्होंने किया. Wow. I That's a great proposed him, story. yeah. So उधर से मुझे नहीं हमारा लगता था कि ऐसा पिक्चरों में ही होता है खाली, मतलब रियल लाइफ में भी होता है कि आप सेट पे मिले और आप फ्रेंड्स हुए and then you got hitched and everything. right. So, And after that we पवन didn't जी, ये stop. specific We directly went on live-in relationship. 6.5 Okay. years we were in live-in relationship and then got married. okay. है ना? तो बोलो. पवन जी, हाँ. 7 साल इसको कैसे जीते? अभी इंटरव्यू के पहले डाई करके आ रहा हूँ. ये टिपिकल आंसर तो मर्दों वाला बहुत ही बढ़िया. और वो करने में किसने मदद की But- वो नहीं बताएंगे. वाह रे वाह. तुम्हारी वजह से सफेद हुए. तो काले भी मैंने ही करा के दिए. देखो कितना ध्यान रखती है, ऐसे तो मत बोलो. हाँ. मैंने एक्चुअली ये चीज ऑब्जर्व करी कि यू टोल्ड मी दैट यू आर वेट टू ट्रेन आफ्टर योर मैरिज. सो व्हाट्स दैट अबाउट कि एकदम से आपको बूस्ट मिला और एक और रिकग्निशन भी मिला, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह. तो हाउ डिड दैट हैपन एक्चुअली? इतना बड़ा बूस्ट का डब्बा मिला एनर्जी ड्रिंक. That's right actually. He himself is a Glucon-D जो एनर्जी ड्रिंक होता है उसका ही पूरा ही एक पैकेज है. तो एंड दिस वाज वो एक कहावत जो होती है कि शादी के बाद किसी का पैर जब आपके घर में पड़ता है ना, तो या आपके लाइफ में पड़ता है तो ना कभी कभार लाइक ज़िंदगी एकदम अच्छी हो जाती है तो कभी कभार एकदम डाउन हो जाती है. बट मेरे केस में ऐसा हुआ, मेरे घर की लक्ष्मी ये ठहरे जो आते ही मेरे लाइफ को लाइक मतलब इनटू सोशल मीडिया एंड ये जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उस पर बहुत उन्होंने बूस्ट दिया सीरियसली. एंड मेनली सपोर्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को वो पहचानने के लिए. सो course. लिटरली इट वाज वेरी अमेजिंग थिंग कि शादी के बाद इतना फटाक से जो बूस्ट मिला. इट वाज ऑसम. थैंक यू सो मच. सो एक्चुअली क्या होता है जब से ये बूस्टर एंड ऑल जब मिला है, इट्स लाइक अभी तो जेन्युइनली पब्लिक में भी लोग पहचानने लगे हैं. तो सीन ऐसा हो जाता है कभी कभार मीन्स ऑलमोस्ट कि
लोग आते हैं लाइक फ़ोटो खींचना है मेरे साथ, दे कम टू मी, बट देन मुझे ये कहते हैं कि मैम हमने पहले तो आपको पहचाना नहीं, या फिर हम ऐसा हो रहा है कि टेंशन आ रहा था कि आपको कैसे पूछे कि आप वही हो, आप योर स्टडी हो या नहीं, बट देन जैसे ही हमने पवन सर को, मिस्टर गुप्ता को देखा, तो वैसे ही हम समझ गए दैट येस दिस इज़ योर स्टडी नेक्स्ट डोर। तो इट इज़ लाइक कि ये मेरे साथ हर कदम पर साथ में है, तो उधर भी साथ में कि लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, पहले इनको पहचानेंगे फिर कंफर्म करेंगे कि येस ये रोहिणी भगत गुप्ता है करके। सो दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली, आई लव दिस थिंग जो पीपल एक्सप्रेस करते हैं। That completely proves my point कि उन्हीं से तुझे ऐसे मिला है फ्लाइट और वही तेरी फ्लाइट उड़ा रहे हैं। Kind of. दैट विल बी रॉन्ग सिंग, वो मेरी फ्लाइट नहीं उड़ा रहे, मुझे मेरा गला चिल्लाना पड़ता है फ्लाइट उठाने के लिए, कसम से। तो पायलट हो डिमांड So you both are doing well. But I would like to ask एक heartfelt experience जो कि मुझे याद आया कि अगर लोग आपको मिलते हैं पर्सनली एंड एवरीथिंग, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो ऐसा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो हो किसी फैन के साथ जो आपको बिल्कुल दिल को छू गया हो? ओह गॉड, एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते उसे। बनारस में या बनारस में जैसे कि सबको पता है कि हम लोग बनारस गए थे, एंड वहाँ पर मैं जाकर जैसे ही लाइव आई थी 2 घंटे बाद, देयर वाज वन गाय, उसने कमेंट में डाला कि मैम आप बनारस में हो, मैं आपको मिल सकता हूँ, आप मिलोगे ना वगैरह। तो मैंने बोला हाँ, मैं किसी फ़ैन का दिल नहीं तोड़ती, मिलना है डेफिनेटली, कभी अगर खर्चा भी करके जाना पड़े फ़ैन को मिलने के लिए तो ओके। तो ही वॉज लाइक ओके ओके मैम, मैं ना आपको कल मिलता हूँ, ऐसा ठीक है बोला मैंने। अगले दिन ये बंदा सुबह मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से ये कहता कि मैम डीएम में आइए प्लीज़, बात करनी है। इनबॉक्स में देखा ही वॉज इन बनारस। ओके, तो मुझे पहले लगा कि चलो ये बनारस में ही रह रहा होगा, लोकल में ही, तो मिल लेते हैं। मिलने गई, दैट टाइम आई केम टू नो कि ये बंदा 8 आवर्स बस का ट्रैवल करके आया था सिर्फ मुझे मिलने के लिए फ्रॉम कानपुर। इमेजिन, फ्रॉम कानपुर ही जस्ट केम टू मीट मी, एंड वहाँ पर जाकर देखा तो ही स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही उसने मुझे देखा ही वॉज लाइक सॉबिंग टोटली, और उसके डीपी पर मतलब जो लॉक स्क्रीन होती है, होम पेज की स्क्रीन होती है, सीरियसली इट वाज माय इमेजेस। मैंने बोला ये सच्ची में इसको डाई हार्ड फैन का अवार्ड दे दो यार कोई। दैट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग फैन स्टोरी लिटरली। Pure, like it's like a fan feeling that you got from there, and like people love you so much that they are into you, and he came all the way actually to meet you. That was so heartfelt. So what is your message to the young girls? Like when you started out, you faced I think many difficulties, many negative comments. Till now also after this success also there are haters out there. But what is your message to the young girls out there? So my message is very simple actually. I would just like to say कि खुद से प्यार करो, एंड देन डेफिनेटली देखो, आप जब खुद से प्यार करोगे, लाइक एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम पहले पिलर को खड़ा करते हैं, राइट? अ पिलर शुड बी मेड फर्स्ट, देन वी कैन बिल्ड अ होल बिल्डिंग। सो दैट्स वाई फर्स्ट लव योर सेल्फ, build yourself, and then just see कि what the world gives you back, literally. This is my mantra कि love yourself and the world will love you back, and that's why I'm here right now. As I've heard, today is someone's anniversary. You know, there are 2 love birds at 7th February, starting of our Valentine's week, and we have this beautiful couple here, जिनकी आज anniversary है. So congratulations to you both. Thank you So so much. what's the plan? जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, this is for our male audience. अगर आपने कोई सरप्राइज प्लान करा है या कुछ करा है तो ये प्लीज ध्यान दीजिए. सरप्राइज शायद ये नचाएंगी मुझे और मुझे नाचना पड़ेगा। कल से बोल रही है डांस वीडियो बनाना है। Okay. God, So this was really let's very keep it- bad. हाँ, ऐसे नहीं बोलते, मैं थोड़ी ना आपको उंगलियों पर नच जा रही हूँ। अरे 8 दिन से जान नहीं रहा है, पगड़ी डांस करना सीरियसली है कोई सरप्राइज प्लान नहीं करा आपने. मेरे फैंस के लिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि
वो नाचेंगे और मैं नचाऊंगी. सो इट्स नॉट इन अ फन पार्ट एक्चुअली. हम लोग सीरियसली, हमारे जो फैंस है वो बहुत बहुत हमें प्यार करते हैं बहुत. अभी मैं मेरे फैंस के साथ साथ मैं हमारे फैंस भी बोल सकती हूँ बिकॉज दे ऑल्सो लव हिम. तो मेरे जो ऑफिशियली मैं अनाउंस कर रही हूँ लाइक हमारे जो फैंस हैं उनके लिए आज शाम को एक वीडियो आने वाला है जिसमें कि उनकी ख्वाहिश, मेरे फैंस की ख्वाहिश पूरी करने वाली हूँ मैं कि मिस्टर गुप्ता डांस करे. सो ही इज़ गोइंग टू डांस विथ मी. एंड वो क्या डांस होगा, कैसा डांस होगा, दैट आई वोंट एक्सप्लेन राइट नाउ. आप लोग बस शाम को जल्द से जल्द लाइक 8-9 PM के आसपास या फिर 6 PM के आसपास डांस वाला हमारा वीडियो आएगा. तो आप डेफिनेटली देखिएगा एंड आपको मिस्टर गुप्ता का डांस, मेरा तो डांस पूरी दुनिया ऑफ कोर्स जानती है, मिस्टर गुप्ता का डांस बस देखना है कि कैसा, और मैं सिखाऊंगी तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. So dear fans, this ये dance तो video is सच going में to ट्रू be हो for गया जो you. पवन जी कह रहे थे कि ये मुझे नचाएगी और मैं नाचूंगा. My God, Rohini, you are too much. But we are up for this video and we see our, beauty in a black and white dress. So what's your take on that? So this lovely attire, this lovely dress is from Mukhwab herself. Oh my God, she has Thank you. designed it so well, and I love this portion mainly. This and this neck piece, right? It's called neck piece only, na Mohini? Explain. I'm not like very much what happening, like what we say. Go on, I go cannot on. explain It's your- much about it's the your dress, stage. but I can only say that I feel beautiful in it. Literally, I feel very confident. I feel very active. कुछ नागिन जैसा लग Yeah, कुछ नागिन जैसा भी लग रहा है. This dress is literally, it's a A-line long dress. I will show you. So आप पूरा dress देख लीजिएगा and make sure you order this dress पवन जी from नागिन से बच Mukhwab. के रहना जरा आज. Sorry? पवन जी नागिन से बच के रहना जरा आप. नहीं तो मैं अजगर से कम नहीं हूँ. अब आदत हो गई. देखो पिटोगे अभी. ये एक असलियत बता रही है. Thank you so much for your impromptu replies and we loved it. And you guys are a cute couple, happy couple, stay happy. Thank you so much for being here. Thank you so much for this interview. Thank you Pawan ji. Thank you. Time निकालने के लिए हमारे लिए and fans के लिए. Thank you Rohini. Thank you so much, Mohini. You are really a sweetheart. And Mukhwab के बारे में कुछ explain करना is, it will be like, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, वो रुकेगा ही नहीं और ये वीडियो चलता जाएगा. तो मुख्वाब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मोहिनी, यू आर रॉक स्टार. And the way you have gained that confidence, I can see. हमारी friendship को भी इस मई महीने में 1 year हो जाएगा, right? Remember? Oh my God, you three socha hi nahi tha. Right, you are right. I surely have to plan a Mumbai trip soon so that we can be together. So in this 1 year, I have seen Mohini changing very much, not in a wrong way, but in a good way, that she has become more confident and now she can handle the whole world on her one finger. Definitely. Like my son. Yeah. जैसे वो ऐसे उंगली पे मुझे घुमाता है. Thank you so much, Mohini, for having us here. Thank you so much, Rohini.